دوستوں، پہلی چنگاری ناول کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ امید ہے یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی۔ بہت جلد آپ کو اس ناول کی 2 ایپیسوڈ ملیں گی، اس لیے سب دوست ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ شکریہ۔ گوری پھٹی آنکھوں سے زمین پر بے جان پڑے دونوں لڑکوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں گوری سے کچھ کہنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے بولا، گوری نکلو یہاں سے اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔ گوری میری آواز کے اشارے سے کھینچتی میرے ساتھ بھاگنے لگی۔ بھاگتے ہوئے میں نے اس کے سینے سے لگی اس کی دوپٹہ کو کھینچ کر اپنے ہاتھ میں کر لیا تاکہ وہ اپنے گھاگرے کو اٹھا کر آسانی سے بھاگ سکے۔ مجھے باہر کے راستے کا تو علم نہیں تھا، پھر بھی میں بھاگتے ہوئے بسوں کے درمیان سے بھول بھلائیاں والا راستہ اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ ہم خاصے ویرانے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں جو بسیں کھڑی ہیں ان کے آس پاس دور دور تک کوئی آدم ذات نام کی چیز نہیں نظر آ رہی تھی۔ تو رات کا وقت زیادہ ہو گیا تھا، پھر یہ ویران بسیں والی سائٹ تھی۔ میں نے ایک جگہ روک کر گوری سے پوچھا، یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ گوری گہری سانسیں لیتے ہوئے دائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس طرف۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر نارمل انداز میں چلتے ہوئے بولا، تمہیں راستے کا علم ہے نا؟ میرا مطلب پکا یہی راستہ باہر کی جانب جاتا ہے نا؟ گوری اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، حاجی سردار جی میں کیسے بھول سکتی ہوں ان راستوں کو؟ میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر بولا، گوری پریشان کیوں ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، خود کو نارمل کرو، ایسے تمہیں گھبرائے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو خواہ مخواہ ہم پر شک کریں گے۔ گوری بولی، سردار جی تم نے لڑکوں کو جان سے مار دیا ہے، وہ ہماری بستی کے لڑکے تھے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ میرے نہیں ہیں، صرف بے ہوش ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے پریشان مت ہو۔ میری بات سن کر گوری بولی، سردار جی تنے نہیں پتا، اگر وہ بے ہوش بھی ہوئے تب بھی میں ماری گئی، اگر مر گئے تو تب بھی میں ماری گئی۔ وہ گوری کی بات سن کر میں رک کر بولا، دیکھو گوری، جو بھی ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی ہمیں یہاں سے فوری طور پر نکلنا ہے۔ اگر تم یوں ہی گھبرائے ہوئے رہی تو کسی راہگیر نے تمہیں یوں گھبرائے دیکھ لیا، پھر باہر نکلتے ہی ہم لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے۔ مجھ پر یقین رکھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ بس ایک دفعہ یہاں سے نکل کر کسی محفوظ جگہ پہنچ جائیں، وہاں پہنچ کر تمہیں تسلی سے سمجھا دوں گا کہ تمہیں آگے کیا کرنا ہے۔ گوری اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کس جگہ جانا ہے؟ گوری کی بات سن کر میں خود سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اب اسے کیا بتاؤں کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ میں نے کہا، فی الحال تو اس لاری اڈے سے باہر نکلو، اس کے بعد بتاؤں گا کہاں جانا ہے۔ مجھے تو باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں معلوم۔ گوری حیرانگی سے میری جانب دیکھتے ہوئے خود پر کنٹرول کر کے بولی، سامنے کی طرف چلو۔ میں نے گوری کی جانب دیکھا تو اس نے چہرے کو اس انداز میں ڈھانپ لیا تھا کہ دیکھنے والا اس کے چہرے کے تاثرات کو نہیں بھانپ سکتا تھا۔ ہم چلتے ہوئے کچھ ہی دیر میں لاری اڈے سے باہر نکل کر بیرونی شہر پر نکل آئے۔ باہر نکل کر جب میں نے ماحول دیکھا تو ہر طرف پگڑیاں پہنے سرداروں کو آتے جاتے دیکھ کر میں نے گہری سانس لے کر شکر ادا کیا کہ اس وقت میرا حلیہ موقع کی مناسبت سے صحیح ہے۔ اسی دوران میری نظر ایک دکان پر پڑی جس کے باہر ہندی میں کچھ لکھا ہوا تھا، مگر دکان کی بورڈ کی لوکیشن دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ PCO ہے۔ پھر بھی میں نے گوری کی توجہ دکان کی طرف کرتے ہوئے کہا، گوری وہ سامنے والی دکان PCO کی ہے نا؟ گوری نے ایک بار پھر سے میری جانب حیرانگی سے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اگر تمہارے پاس مزید کچھ پیسے ہیں تو مجھے گھر پر فون کرنا ہے۔ گوری اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں جی سردار جی، پیسے ہیں میرے پاس۔ میں نے اسے PCO کی طرف چلنے کا کہا۔ دکان میں داخل ہو کر میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دونوں پرچیاں نکال کر جرنیل سنگھ کے گھر کے نمبر والی پرچی سکھ دکاندار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پاجی یہ نمبر تی ملا دو۔ سردار پرچی پکڑ کر نمبر دیکھ کر بولا، سردار جی ہریانہ سے ہو؟ میں نے ہم کہتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سردار نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا، ہریانہ کس جگہ سے ہے؟ اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں نے دل ہی دل میں اسے 2-4 تگڑی گالیاں دیں کہ سالہ جو کام کہا ہے وہ کر، تم کے رشتہ داریاں نکالنے بیٹھ گئے ہو۔ پھر میں نے کہا، ہریانہ شہر سے ہیں۔ مجھے اب یہ ڈر تھا کہ کہیں سالہ یہ نہ پوچھنے بیٹھ جائے کہ ہریانہ شہر میں کس جگہ رہتے ہو، تو پھر اسے میں کیا جواب دوں گا۔ مگر میری قسمت اچھی تھی کہ اس نے میرا نمبر ڈائل کر کے مجھے ریسیور پکڑا کر بولا، یہ لو سردار جی بیل جا رہی ہے۔ ریسیور پکڑا کر وہ دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ 6-7 بیل بجنے کے بعد دوسری جانب سے روب دار آواز سنائی دی، ہیلو جی، کون بول رہا ہے؟ آواز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا،
जरनैल सिंह से बात करवाएं। और दूसरी जानिब से आवाज आई, कौन बोल रहा है? अपना नाम बताएं। ये मैंने दुकानदार सिंह की तरफ नजर भर कर सरगोशी में कहा, बलवीर सिंह का साथी। दूसरी जानिब चंद लम्हे खामोशी रहने के बाद दोबारा आवाज आई, अपना नाम बताओ। मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा, यासिर बलवीर सिंह की टीम से। चंद लम्हे खामोशी रहने के बाद दोबारा आवाज आई, यासिर तुम कहाँ हो? मैंने कहा, मैं इस वक्त चंडीगढ़ लारी अड्डे पर हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं मजीद तफसील बताने का। मुझे ये बताएं कि बलवीर सिंह और बाकी साथी वापस आ गए हैं। दूसरी जानिब से आवाज आई कि कुछ साथी वापस पहुंच गए थे। मगर मैं जल्दी से बोला, मगर क्या? वो बोला, मगर कोठी पर आर्मी का छापा पड़ने की खबर मिलने पर सब साथियों को महफूज ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। तुम 2-3 दिन किसी महफूज ठिकाने पर रहो। 2-3 दिन बाद कॉल करना, तुम्हें मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर दिया जाएगा। अब दोबारा यहाँ कॉल मत करना। ये कहकर साथ ही कॉल कट गई। दूसरी तरफ से कौन बोल रहा था, इसने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। बस मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन देने के बाद इसने कॉल काट दी और साथ में दोबारा कॉल करने से भी मना कर दिया, जिससे मुझे इतना तो कन्फर्म हो गया कि वहाँ मामला खराब है। मैंने मनमयत कौर की सहेली का नंबर डायल करने का सोचा, मगर कुछ सोचकर मैंने रिसीवर क्रेडल पर रखकर सरदार को आवाज देकर इससे कॉल के पैसे पूछे और गोरी से पैसे लेकर सरदार को पैसे देकर इसे सुस्रियकाल बोलकर गोरी को आगे चलने का कहा। पीसीओ से निकलकर हम सीधा चलने लगे। मुझे एक दूसरी पीसीओ की तलाश थी ताकि वहां से मनमयत कौर की सहेली के घर कॉल कर सकूं। इस दौरान गोरी बोली, क्या हुआ सरदार जी, कोई परेशानी है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं परेशानी तो नहीं है, बस एक आखिरी कॉल करनी है, इसके बाद हम घर चले जाएंगे। गोरी बोली, मगर सरदार जी मैंने तो आपके साथ कहीं नहीं जाना। मैं इसकी बात का जवाब देने लगा था कि इसी दौरान कुछ दूर मुझे पीसीओ का बोर्ड नजर आया। मैंने गोरी की बात का जवाब देने की बजाय कहा, गोरी वो देखो पीसीओ, बस आखिरी कॉल करवा दो। गोरी हैरानगी से बोली, सरदार जी मुझे तुम बंदे ठीक नहीं लग रहे। अगर दूसरी कॉल करनी थी तो इसी पीसीओ से कर लेते, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, कमाल करती हो तुम, अभी भी तुम मुझे गलत समझ रही हो। इस पीसीओ पर आवाज साफ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने दोबारा कॉल नहीं की, वरना इसने तो पैसे मांग लिए हैं। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं कि अभी तक तुम्हारा खर्चा करवा रहा हूं। ये कहकर मैं गोरी को लेकर पीसीओ में दाखिल हुआ तो वहां भी सरदार ही ओनर था। मैंने सरदार को सुसरिये कॉल कहने के बाद इसे पर्ची दिखाते हुए चंडीगढ़ में मौजूद मनमयत कौर की सहेली का नंबर मिलाने का कहा। सरदार ने एक नजर नंबर पर डालकर नंबर डायल करके मुझे रिसीवर पकड़ा दिया। चंद बैलों के बाद दूसरी जानिब से लड़की की चहकती हुई शोख आवाज आई, हेलो प्रीति स्पीकिंग। मैंने कहा, आप मनमयत कौर की फ्रेंड बोल रही है? दूसरी जानिब चंद लम्हे खामोश रहने के बाद प्रीति नामी लड़की बोली, जी मनमयत कौर की बेस्ट फ्रेंड प्रीति बोल रही हूं। कहीं आप यासिर साहिब तो नहीं? इसके मुंह से अपना नाम सुनकर मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद गोरी की तरफ से चेहरा का रुख फेरते हुए निहायत सरगोशी में कहा, जी मैं यासिर बोल रहा हूं। क्या आप मनमयत कौर से मेरी बात करवा सकती है? मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हूं और मुझे इस वक्त इमरजेंसी बात करनी है। प्रीति नामी लड़की शोखी से बोली, वाओ इमेजिंग यार, क्या आप वाकई चंडीगढ़ में हैं? मैंने कहा, जी मैं चंडीगढ़ के मैन लारी अड्डे से बात कर रहा हूं। प्लीज अगर मुमकिन है तो जरा जल्दी मनमयत से बात करवाएं, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मेरी बात सुनकर प्रीति संजीदगी से बोली, आई एम सॉरी सर, मनमयत तो 2 दिन कबल ही अपनी खाला के घर बटंडा चली गई है। जितनी खुशी मुझे इसके मुंह से अपना नाम सुनकर हुई थी, इससे कहीं ज्यादा दुख ये सुनकर हुआ कि मनमयत कौर वहां से जा चुकी है, क्योंकि इस वक्त मुझे किसी आशना की जरूरत थी। इसकी बात सुनकर मैं जैसे सदमे में चला गया था कि अचानक प्रीति की आवाज मेरे कानों में पड़ी, हेलो हेलो यासिर सर, प्लीज कॉल मत बंद करना, मुझे आपसे मिलना है। प्लीज आप अपनी करेक्ट लोकेशन बताएं, मैं बस 15 मिनट में पहुंच रही हूं। हेलो हेलो यासिर सर, मेरी बात सुन रहे हैं ना? प्रीति की बात ने जैसे मेरे अंदर जिंदगी की नई लहर दौड़ा दी थी। मैं चौंक कर बोला, जी जी सुन रहा हूं, मगर आप तो कह रही हैं मनमयत कौर यहां से चली गई है। प्रीति बोली, जी वो चली गई है, मगर उसका कुछ पैगाम था आपके लिए जो आपसे मिलकर ही दिया जा सकता है। प्लीज सर एक दफा मिल लें। प्रीति ऐसे मेरी मिन्नतें कर रही थी जैसे मैं कोई वीआईपी हूं। अब इसे क्या पता कि इस वक्त मुझ पर जो हालात मुसल्लत हो गए थे, मैं तो तिनके का सहारा ढूंढ रहा था।
मैं चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, ओके मैं आपका वेट कर रहा हूं मगर प्लीज अब जल्दी आ जाना। वो मेरी बात सुनकर प्रीति खुशी से मचलते हुए बोली, थैंक्स सर, मैं बस 10 से 15 मिनट में पहुंच गई। मुझे बस करेक्ट लोकेशन बता दें। मैंने 1 मिनट कहकर सरदार से लोकेशन पूछकर प्रीति को लोकेशन के बारे में आगाह कर दिया। कॉल बंद करके मैंने गोरी से पैसे लेकर सरदार को देते हुए हम दुकान से बाहर निकल आए। गोरी बोली, सरदार जी लगता है आपको कोई लेने आ रहा है, इसलिए मैं चलती हूँ। मैंने कहा, क्यों गोरी, तुम कहाँ जा रही हो? गोरी बोली, क्यों का क्या मतलब सरदार जी, अब आप अपने घर जाएं और मैं अपने रास्ते पर। हमारा साथ बस यहाँ तक ही था। एक तरफ गोरी जाने का इसरार कर रही थी, दूसरी तरफ मैं भी दिल्ली तौर पर इसे मनमैयत कौर की सहेली के घर ले जाने पर तैयार नहीं था। अगर जर्नैल सिंह के घर से तसल्ली बख्श जवाब मिल जाता तो शायद मैं गोरी को मजीद अपने साथ रखकर इसे किसी महफूज जगह छोड़ने का बंदोबस्त कर देता, मगर इस वक्त मैं खुद ज़हनी अजियत में मुब्तला था। ऐसे में गोरी का बोझ कहाँ उठाए फिरता। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि मेरी रात कहाँ गुजरनी है और सुबह कहाँ पर होनी है। मैंने रस्मी तौर पर गोरी को कहा, अगर तुम्हें किसी किस्म का खतरा है तो तुम मेरे साथ चलो, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तब तुम अपनी बस्ती लूट जाना। गोरी बोली, सरदार जी मुन्ने यहाँ तो कोई खतरा नहीं है। खतरा तो बस्ती लूट कर होगा जब बस्ती वालों को इन लड़कों के बारे में मालूम होगा। ये मैंने कहा, मगर लड़कों को मारते हुए हमें कौन सा किसी ने देखा है जो तुम पर इल्जाम आएगा। मेरी बात सुनकर गोरी मुंह खोलकर होंठों के आगे दोनों हाथ रखकर हैरानगी का इजहार करते हुए बोली, इसका मतलब कि दोनों छोकरे मर गए हैं। गोरी की आवाज थोड़ा बुलंद थी। मैंने घबरा कर उसका बाजू दबाते हुए कहा, क्या हो गया तुझे? आहिस्ता बोल, क्यों अपने साथ मुझे भी फंसवाएगी? गोरी संभलते हुए बोली, सरदार जी ये तुमने क्या कर दिया? हाय भगवान, अब क्या होगा? मैं तो चली यहाँ से। ये कहकर गोरी मुझसे बाजू छुआ कर एकदम से सड़क क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ी। मैं इसे रोकते रोकते रह गया मगर वो तब तक गाड़ियों से बचती बचाती सड़क क्रॉस करके दूसरी जानिब जा चुकी थी। मैं वहीं खड़ा गौर से इसे जाता देख रहा था। साथ में मुझे हैरानगी भी हुई कि इस लड़की की खातिर मैंने 2 लड़कों को जिंदगी मौत के दरमियान धकेल दिया और ये खुद की जान बचाने के लिए कैसे अनजान बनकर मुझे उगलों छोड़कर भाग निकली है। फिर अगले ही लम्हे में ये सोचकर खुद को समझा लिया कि ऐसे हालात में गोरी का जाना ही बनता था। शायद मेरे लिए यही बेहतर था, इसलिए वो अचानक से मेरा साथ छोड़कर गई। चंद लम्हों बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी फी अल वक्त इस जगह से फौरी तौर पर हिट जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जर्नैल सिंह के घर का फोन ट्रैकिंग पर लगा हो और हर आने वाली कॉल को ट्रेस किया जा रहा हो। ये सोचकर मैं आगे की जानिब चल पड़ा। थोड़ा आगे जाकर दाएं जानिब छोटी सी गिल्ली थी और गिल्ली की नुक्कड़ पर पान शॉप की दुकान थी, जहां पान खाने वालों का काफी रश लगा हुआ था। खड़े होकर प्रीति का इंतजार करने के लिए मुझे वो जगह माकूल लगी। मैं पीसीओ पर नजर रखकर वहां खड़े सरदारों के बीच खड़ा हो गया। मैं अजीब उलझन का शिकार था। एक तरफ कॉल ट्रेस होने की परेशानी, दूसरी तरफ मनमैयत कौर की सहेली प्रीति का इंतजार था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि प्रीति का हुलिया कैसा है और वो किस चीज पर मुझे रिसीव करने आएगी। मुझे वहां खड़े 15 मिनट गुजरे थे कि सुर्ख रंग की सपोर्ट कार पीसीओ के सामने आकर रुकी। इसकी ड्राइविंग सीट पर नजर पड़ी तो जवान साला लड़की ड्राइविंग सीट पर बैठी मुतलाशी नजरों से पीसीओ का बोर्ड देखकर दुकान में झांकती नजर आई। इसका रिएक्शन देखकर मेरे दिल से आवाज आई कि होना हो यही प्रीति है। दिल की दलील मिलते ही मैं कार की जानिब बढ़ते हुए हाथ हिलाकर लड़की की तवज्जो अपनी जानिब करने लगा। इत्तेफाक से लड़की ने मुझे हाथ हिलाते देखकर गाड़ी आगे बढ़ाते हुए मेरी जानिब आना शुरू कर दिया। जैसे ही गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी तो लड़की ने बड़े गौर से मुझे सर से नीचे तक देखकर हैरानगी से पूछा, हाँ जी सरदार जी। मैंने आगे बढ़कर कहा, आर यू प्रीति? लड़की ताज्जुब से इस बात में सर हिलाते हुए मेरी जानिब उंगली करके बोली, यस बट यू आर। मैं इसकी बात काटते हुए उधर उधर देखकर बोला, मैं यासिर मनमैयत कौर का दोस्त। प्रीति के चेहरे का रंग एकदम सुर्ख टमाटर जैसा हो गया। वो जल्दी से गेट खोलते हुए बोली, वेलकम टू यासिर साहिब। ओ मैं थैंक्स कहकर गाड़ी में बैठते हुए बोला, प्लीज गो एंड फास्ट। प्रीति चौंक कर मेरी जानिब देखकर शायद वो मेरी असलियत से भी वाकिफ थी, इसलिए इसने कोई सवाल करने की बजाय ओके कहकर गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, सर एनी प्रॉब्लम? मैंने कहा, इस वक्त जितनी जल्दी हो सकता है आप मुझे घर ले चलीं, बाकी की तफसील घर चलकर बताऊंगा। प्रीति ने संजीदगी के साथ हम कहते हुए इस बात में सर हिलाकर ओके कहा।
प्रीति ड्राइविंग में काफी महारत रखती थी क्योंकि रोड पर जैसे बेहंगम ट्रैफिक थी और रात का वक्त था। ऐसे में ट्रैफिक के बीच में से गाड़ी निकाल कर ले जाना, वो भी फुर्तीले अंदाज में, किसी अनाड़ी का काम नहीं था। कुछ ही देर में प्रीति ने गाड़ी को बाईं जानिब ट्रिम देकर कॉलोनी में गाड़ी मोड़ दी। कॉलोनी में हर तरफ शानदार कोठियां और एक से बढ़कर एक बंगले देखकर मैं प्रीति का स्टेटस समझ गया था। वैसे तो इसका स्टेटस जानने के लिए इसका लाइफ स्टाइल ही काफी था। जीन्स की चुस्त पैंट, शॉर्ट गोल्डन शोल्डर कटिंग बाल, गर्दन में हैंडफोन, महंगी तरीन सपोर्ट्स का, फिर भी हाई सोसाइटी में घर होना भी इसका रिच फैमिली से ताल्लुक होना बता रहा था। वैसे भी मनमयत कौर ने मुझे प्रीति के बारे में इतना तो बताया था कि इसके वालिदैन कनाडा में रहते हैं और ये दोनों बहन भाई अपने वतन से मोहब्बत की वजह से कनाडा जाने की बजाय पंजाब में रहते हैं। मुख्तलिफ संप मोड़ काटने के बाद प्रीति ने एक आलीशान कोठी के बड़े से गेट की जानिब गाड़ी का रुख करके मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया। चंद लम्हों में चौकीदार ने गेट खोला। प्रीति ने जिस अंदाज में गाड़ी के टायरों की चीखें निकलवा कर गाड़ी को गेट क्रॉस करवाया, वो सीन देखकर मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं भी ऐसे ही गाड़ी को गेट क्रॉस करवाता था, मगर मेरे और प्रीति के लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क था। कोठी काफी शानदार थी। गैराज से लेकर लोन तक हर चीज काबिल दीद थी। गैराज में एक और सपोर्ट कार और एक सफेद रंग की लॉन्डी जीप खड़ी थी जो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तैयार की गई थी। प्रीति गाड़ी से उतरते ही कम यासिर कहकर गाड़ी से उतरने लगी। मैं भी गेट खोलकर गाड़ी से बाहर आकर गेट पर खड़े चौकीदार पर एक नजर डालकर कोठी का जायजा लेने लगा। प्रीति मेरी जानिब देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम टू माई हाउस डेयर यासिर। प्रीति अमीर होने के साथ साथ दिल की अमीर तरीन लड़की थी। इसमें तकब्बुर और मगरूरी की एक झलक भी दिखाई नहीं देती थी, बल्कि वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे मैं इसकी आइडियल शख्सियत हूं, जिसे मिलने की खुशी में वो पुरमसरत होने का इजहार कर रही है। मैं मुस्कुरा कर थैंक्स कहकर उसके साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम भी शानदार अंदाज में सजाया गया था। हर एक शय अपनी अपनी जगह पर निहायत नफासत से सजाई हुई थी। ड्राइंग रूम का जायजा लेते हुए मैंने महसूस किया कि हम दोनों के अलावा वहां तीसरी कोई जिन्स नहीं थी, मगर अगले लम्हे मेरा ख्याल गलत साबित हुआ जब एक खूबसूरत सा लंबे बालों वाला टॉमी भागता हुआ प्रीति के पास आकर उसके पांव चाटने लगा। प्रीति ने झककर कम ऑन माई बीबी कहकर इसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। टॉमी वफादारी का सबूत देते हुए अपनी लंबी जुबान निकालकर भरे अंदाज से प्रीति की गाल चाटने लगा। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, नाटी बॉय, वो देखो हमारे कितने प्यारे गेस्ट आए हैं, उनको वेलकम नहीं करना। एंड यासिर सर, ये मेरा नाटी बॉय जानो है। मैं ये देखकर हैरान रह गया। प्रीति की बात सुनकर टॉमी इसकी गोद से खिसक कर नीचे उतरकर मेरी जानिब बढ़कर मेरे पैरों में आकर मेरी जानिब देखकर मखसूस आवाज में भौंक कर मेरे पैरों को चाटने लग गया। टॉमी बज़ाहिर तो जानवर था, मगर उसका वेलकम करने का स्टाइल देखकर उसने मुझे झककर इसे उठाने पर मजबूर कर दिया। मैंने झककर इसे उठाकर अपने साथ लगा लिया। इसी दौरान अचानक टॉमी ने नाक सुकड़ते हुए कुछ सूंघना शुरू कर दिया, जैसे इसे मुझ में से कोई खास बो महसूस हो रही हो। अगले लम्हे वो एकदम से मेरे पांव से निकलकर नीचे छलांग मारकर मेरी टांग के साथ अगले पांव लगाकर पिछले पैरों पर खड़ा होकर मेरी रान को सूंघने लग गया। इसकी हरकत को देखकर मुझे याद आया कि जिस जगह टॉमी नाक सुकड़ते हुए कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा है, यहां तो मैंने हथियार लगाया हुआ है। शायद इसे इससे किसी शय की बो महसूस होती हो, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था। टॉमी की हरकत मुझे उलझन में डाल रही थी। इससे पहले कि टॉमी मजीद कुछ करता, प्रीति ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके पेट को बाजू में लेकर इसे उठा लिया। टॉमी एकदम मेरी जानिब देखकर भौंकने लग गया। इस बार वो खसली अंदाज में भौंक रहा था जैसे वो अपने मालिकन को किसी खतरे से आगाह कर रहा हो। प्रीति इसे डांटते हुए खामोश रहने का कहने लगी, मगर वो तसलसल से भौंक के जा रहा था। प्रीति परेशान होते हुए बोली, इसे क्या हो गया? पहले तो कभी इसने ऐसा रिएक्ट नहीं किया। सॉरी यासिर सर, प्लीज अब बैठे, मैं इसे इसके कमरे में छोड़ कर आती हूँ। ये कहकर प्रीति सामने कमरे की तरफ चली गई। पहले तो मैं प्रीति को इसके जानवर टॉमी के भौंकने की वजह बताने लगा था कि शायद ये मेरी रान में लगे हथियार की वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहा है। फिर कुछ सोचकर मैं खामोशी से सोफे की जानिब बढ़ गया। सोफे पर बैठते हुए पहली दफा मेरी प्रीति के पिछवाड़े पर नजर पड़ी। कद 5 फुट 6 इंच। इसके जिस्म के निशेब व फराज से लगता था कि वो फिटनेस के लिए जिम करती है।